حروف مشبہ بفعل بفعل استاد محترم، استاد محترم، اور وہ چھ ہیں. حروف مشبہ بفعل وہ چھ ہیں. انا جی و انا و ہاں کانا و کنا ولکنم ولیتا ہاں ولعل. ان ہاں حروف کا ایک اسم چاہیے، چاہے منصوب، اور خبر چاہیے مرفوع. چاہے منصوب اور خبر چاہے مرفوع. جیسے ان زیدن قائم، زیدن کو ان کا اسم کہیں گے اور قائم کو ان کی خبر. تو جان لے کہ انا و انا حروف تحقیق ہے، اور کانا حرف تشبیہ ہے، اور لاکنہ حرف استدراک ہے، اور لیتا حرف تمنی، اور لعل حرف ترجیح ہے. ترجی ہے. چلو بس ٹھیک ہو گیا. اب سن لیں اس کی جو ہے نا حروف مشبہ بالفعل، ان حروف کی فعل کے ساتھ مشابہت کیوں ہے اور ان کو حروف مشبہ بالفعل کیوں کہتے ہیں. کیونکہ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہتے ہیں کہ ان حروف کی فعل کے ساتھ لفظی مشابہت بھی ہے اور معنوی مشابہت بھی ہے. لفظی مشابہت تو ایسے ہے کہ انا اور انا، ٹھیک ہے، اور کا انا و لاکنہ و لیتا و لعلہ، جیسے جو ہے نا فعل کے حروف جو ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں، ان کے حروف بھی تین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر انا جو ہے نا انا کو ہم مشدد ہے تو مشدد میں ہمیں پتا ہے کہ دو حرفوں کو ضم کر کے مشدد بنایا جاتا ہے. اگر ہم اس شد کو ختم کر دیں گے تو یہ نون، دو نون ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو جیسے فعل میں تین حرف ہوتے ہیں ایسے اس میں بھی تین حرف ہو جائیں گے. ٹھیک ٹھیک ہے. یہ تو ایسے ہی وکانا انا میں بھی تین حرف ہو جائیں گے. یہ ہو گیا فعل کے ساتھ مشابہت تین فعلی جس کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، یعنی تین حرف والے فعل کے ساتھ مشابہت. آگے ہے چار حرف والے فعل کے ساتھ مشابہت، اس کو کہتے ہیں رباعی. آپ پڑھیں گے آگے. رباعی یعنی چار حرفوں والا فعل، اس کو رباعی کہتے ہیں. اس کے ساتھ مشابہت کس کی ہے؟ کانا اور لاکنہ. اگر ان میں بھی ہم اگر کاف ایک حرف ہے، حمزہ ایک حرف ہے، نون دو نون ہے، تو یہ چار حرف ہو گئے. ٹھیک ہے. آگے ہے لاکنہ. ٹھیک ہے. لاکنہ یہ بھی کیا ہے؟ چار حرف ہے اس کے اندر. تو ان ہاں کی جو جی ہے نا لیتا، یہ، ہاں، لیتا تین حرف ہو گئے. ٹھیک ہے. تو ان کی جو ہے نا لفظی مشابہت ہوگی فعل کے ساتھ. آگے ہے مانوی مشابہت. مانوی مشابہت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے جو ہے نا یہ جو ہے منصوب ہوتا ہے نا، فعل ماضی منصوب اور رفع پر مبنی ہوتا، فتح المبنی ہوتا ہے، ایسے ہی یہ حروف بھی فتح المبنی ہوتے ہیں. ان کے آخر میں بھی فتح آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی فتح المبنی ہوتے ہیں. یہ ان کی حروف کے ساتھ مشابہت ہے، فعل کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں. لفظی مشابہت بھی ہوگی اور معنوی مشابہت بھی ہو گئی. ٹھیک ہے. اور عملاً مشابہت ایسی ہے کہ جیسے ان کا جو ہے نا فعل کا جو ہوتا ہے فاعل وہ اسم ہوتا ہے، ایسے اس کا بھی مبتدا جو اس کا اسم جو ہوتا ہے نا ان کا، وہ بھی اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی اسم، یعنی اس کا جو فعل جو ہوتا ہے نا، فعل اسم ہوتا ہے، فعل کا فاعل اسم ہوتا ہے، ہے فعل یعنی اسم پہ داخل ہوتا ہے. یہ بھی انا اور انا یہ بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں. یہ ان کی عملی مشابہت ہوگی. ٹھیک. آگے ہے ان کی معنی کیا ہے؟ ان اور انا یہ تحقیق بات کو پکا کرنے کے معنی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے انا زید قائم، اس کا ترجمہ یہ بنے گا بے شک یہ زید کھڑا ہے، یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے آتے ہیں، تحقیق کے معنی میں آتے ہیں. اور کانا اور لاکنہ یہ استدرکتو کے معنی میں، کانا تشبیہ کے معنی میں آتے ہیں اور لاکنہ استدرکتو کے معنی میں آتے ہیں. اور لیتا حروف تمنی اور لالا حروف ترجی، یعنی تمنا اور امید کے لیے ان حروف کو استعمال کیا تھا. ان حروف کے بارے میں مختصر یہ بتانا ہے کہ جب بھی یہ حروف آئیں گے تو یہ اپنے اسم کو نصب دیں گے اور
खबर को रफा देंगे, यानी इनकी इसम जो होता है वो मंसूब होता है और खबर इनकी मरफू होती है। इसके अंदर यही बात है। हाँ। हाँ, तो इससे ज्यादा इसके अंदर कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल आसान है। फेल के साथ मुशाबहत इसलिए है कि लफ्ज़ी मुशाबहत इसलिए है कि उसके अंदर जो है फेल के भी तीन हरूफ होते हैं माजी के, जैसे मिसाल के तौर पे इनके इन्ना और अन्ना के भी तीन हरूफ होते हैं। ऐसे ही फेल अगर आ जाए चार हरफों और रुबाई, तो जैसे मिसाल के तौर पर अकरामा, ये चार हरफों वाला आ गया, तो इसके अंदर भी जो है ना लाकिन्ना इसके अंदर भी चार हरफ हो गए, कान्ना इसके अंदर भी चार हरफ हो गए। तो ये इनकी जो है लफ्ज़ी मुशाबत होगी। और मानवी मुशाबत ये होती है कि जैसे ये इसम और फेल पे इसम पर दाखिल होते हैं, फेल फेल जो होता है इसम पर दाखिल होता है, ऐसे ही इन्ना भी जो है ना इसम पर दाखिल होता है। ठीक है। बाकी इसकी तरकीब ये है, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है, ज़ैदुन इसका इसम और कायमुन इसकी खबर है। हरफ मुशब्बह बिल फेल अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो ये है जिसके अंदर बात। बाकी देख लें इसके अंदर अगर कोई समझ में नहीं आई। जी। जी उस्ताद जी, अल्लाह का शुक्र है, समझ आ गई। हाँ जी, समझ आ गई जी। जी उस्ताद जी। हाँ, मतलब दोनों का कोई मतलब बात। इन और अन्य का एक ही होगा या मुख्तलिफ होगा? हाँ जी। नहीं, इनका मतलब एक ही है। बस इनमें फर्क ये होता है कि जो इन्ना इन्ना जो होता है ना, इन्ना इन्ना जो होता है ना, इन्ना जिस जो जुमले के शुरू में आता है, और अन्ना जो होता है ना बात चलती हुई बात के दरमियान में भी दरमियान में आ जाता है। इन्ना जो होता है ना, बस इसके अंदर फर्क ये होता है, इन्ना से बात को शुरू किया जाता है, यानी जब भी जुमला इन्ना से होगा। लेकिन जो अन्ना होता है ना, ये जुमला शुरू हो गया दरमियान में ये आ जाता है, इन्ना दरमियान में नहीं आता। लेकिन एक दो जगह ऐसी हैं, जैसे मिसाल है कॉल के बाद, कॉल लफ्ज़ कॉल, काला यकूलू, कॉल आएगा मस्तर, कॉल मस्तर के बाद हमेशा इन्ना आएगा। ठीक है। एक दो जगह ऐसी हैं, वो आगे आपको आपके सामने आ जाएंगी, तो वहां पर जो है ना इन्ना इन्ना का होता है। मतलब, लेकिन इन्ना जो होता है ना, हमेशा जुमले के इब्तिदा में इन्ना आता है। इन्ना का मतलब बेशक है ना। जी बेशक है। जी। अच्छा जी, कुरान में कई जगह आया है इन्ना। जी। हाँ। इन्नल्लाह अला कुल्li शैइन कदीर। माशाल्लाह, इन अल्लाह अला अला कुल्ली शैइन कुल्li कदीर। शैइन। इन अल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये भी है ना। इन और भी अल्लज़ीना मिसालें लें। कफ़रू मिन अहलिल किताब वल हाँ, मुशरिकीन। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े हीरे निकल रहे हैं यार। और भी मिसाल दें। जी इन إن लजीना आमनू। صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो, देखना हाफिज थोड़ी सी। हाफिज साहब, हाफिज साहब अन्ना की कोई मिसाल देना हाफिज साहब। अन्ना, हाँ जी। ताजी अन्ना ला अन्ना लहुमुल जन्ना, इस तरह कुछ आता। ये मेरे ज़हन में आयत नहीं है। अच्छा हज़रत, मैं एक बात अर्ज करूं कि जी। जो यहाँ बात हज़रत समझने की है वो ये है कि यानी जो अल्लाह व मलाइकता, यानी जो अल्लाह था वो हालत रफ़ी में था, यानी वो फाइल कहाँ जो पर? खबर होती है इबारत वो मंसूब होती है। पूरी पढ़े ना, इबारत पूरी पढ़े तो फिर समझ में आएगा। इबारत पूरी पढ़े। जैसे सर जईदुन, ये मिसाल लेते हैं, जईदुन काइमुन, तो हाँ। जईदुन हज़रत फाइल है और काइमुन ये खबर है, यानी जईदुन इसम है और काइमुन ये खबर है। तो अगर इस हाँ। पे इन्ना को तफसील करेंगे तो इन्ना जईदुन से जईदन हो जाएगा, क्योंकि ये हाँ आपने जी। जो इसको नस्ब देते हैं, इन्ना जईदन और खबर को रफा काइमुन। दे। जी, खबर को हाँ। रफा, चूंकि पर वो खबर पे रफा पहले ही है जी, तो वो मरफू ही हाँ। रहेगी। इन्ना जईदन हाँ। काइमुन, तो ये तब्दीली आ हाँ। जाएगी जी। और अगर हम तस्निया के हाँ। लिए बात करें तो अर्रजुलानी का ईमानी, यानी दो मर्द खड़े हैं, तो अगर इसको नहीं नहीं, दाखिल करते गलत हैं किया आप। को, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं सही है। अरे तो ये सही वो मैच जो करता हूँ ना, फिर आप इनका तस्नीह मिसाल कीजिएगा। इनका ना,
मेरी बात सुने, मैंने आपको उसने भी अर्ज किया था कि ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, देखो ये इसम मिसाल के तौर पर ये अपने इसम को रस्ब देता है और खबर को रफा देता है। ये इनका इसम जो होता है ना, इनका इसम, मेरी सुन बात, इनका इसम जो होता है वो वाहिद आता है। ठीक है, अक्सर मसालों में इनका इसम वाहिद ही होता है। ठीक है, जैसे आप मिसाल, आप जितनी भी मिसालें ढूंढ लें, तो इनका इसम जो है ना वो वाहिद ही होगा। अक्सर मसालों में तकरीबन इनका इसम वाहिद होता है। कब शायद कहीं कहीं आ जाए ऐसा कोई इनका इसम जमा हो, जैसे जैसे इन्नहुम ज़मीरों में आ सकता है, ज़मीरों में तो आ जाएगा, लेकिन लफ्जों में इनका इसम जो है ना वो नहीं आता। जैसे इन्नहुम, इन्नहुम का अन्नहुम। ठीक है, तो जमायर में आएगा इसम जो है ना, लफ्जों में इनका इसम तस्निया जमा बहुत ही शाज और नादिर काम ही आता है। और ठीक है। सही है जो इन अल्लाह व मलाइकतहु, इसमें हाँ। तो अल्लाह जो है ना वो हलते मंसूब में है, और आगे जो है ना वो मरफू आ रहा है मलाइकतहु, तो इसमें वो बन रही है इसम खबर वगैरह या इन्नल्लाह व मलाइकतहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु मलाइकतहु, तो अल्लाह के बंदे कहाँ मरफू है? मलाइकता मुजाफ है, हुज में मुजाफ इलैह है। मलाइकतहु, मला जिस बन रहा है ना, इन अल्लाह मंसूब है, मलाइकाता जो है ना मुजाफ, और हुज में मुजाफ है, जो लफ्ज़ अल्लाह की तरफ डोल रही है। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पेश करते हैं। तो कहाँ पर मरफू है ये? तो ये बन रहा है खबर, और इसम बन रहा है ना। आप इसके इराब देखेंगे, मलाइकाता हु, और मलाइका हु, समझ आ गई? नहीं समझ में आई? ये आगे हाँ। जो वो हैं? भाई आपकी आवाज समझ नहीं आ रही। अच्छा हजरत, ये बताइए कि जैसे इन्न जैदन काइमुन, तो यहाँ पे जो हरफे जी। मुशब्बा बिल फेल है, इसकी वजह से क्या तरकीब पे फर्क पड़ता है, या वही इसमें इसमें खबरिया रहेगा, जुमला जो है वो इसमें खबरिया रहेगा? नहीं नहीं, ये जुमला इसमिया खबरिया, जुमलिया इसमिया खबरिया ही रहेगा। ठीक है, जुमला इसम सही है। इन्ना ज़ैदुन कायम, इन्ना हरूफ मुशब्बह फेल, ये सिर्फ फेल के साथ इसकी मुशाबत है हरफ की। बाकी तरकीब तो इसकी वही होगी कि जुमला इन्ना हरूफ मुशब्बह फेल अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। ठीक है जी सही है, जी जी। सही है। उस्मान अली, क्या सवाल है, सवाल आपका? जो मैं बात अर्ज कर रहा था ना कि जैसे अर्रजुलानी काईमानी है, तो इसमें अर्रजुलानी इसम तो है ना जी, और काईमानी खबर भी है। तो अगर अर्रजुलानी काईमानी पे इन्ना को दाखिल करते हैं, तो इन रजुलैनी का ईमानी ऐसे हो तो सकते हैं ना जी, अगर तस्निया या जमा के लिए आ जाए वही रजुलानी मेरी का जो सुने, मेरी आप बात सुने, ओ मेरी बात सुने, मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि ये तस्निया, और जो तस्निया हो गया इसम, और जो जमा हो गया इसम, इनके ऊपर शायद कोई इल्ला कलील ही कहीं दाखिल हो रहा हो, लेकिन ये जो होता है ना, इन्ना कान्ना लई तलाला, इनके बाद अक्सर जो इसम आते हैं वो वाहिद ही आते हैं। ठीक है। अच्छा हजरत, अगर मैं अर्ज करूं कि बेशक दो आदमी खड़े हैं, तो मैं क्या जुमला बनाऊंगा? हजरत आवाज आ रही है आपको? और सर जी ये कुरान की आयत भी है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, उसमें भी मसाजिद आ गया आगे जमा। असल में ना उसामा भाई, ये जब तस्मिया भी दाखिल करेंगे ना, तो अर्रजुलानी तो इसकी हालत रफ़ी है, और इसका चूंकि वो हालत नस्बी व जर्री या और नून के साथ है ना, तो इन रजुलैनी का ईमानी मेरे ख्याल में ऐसे हो जाएगा। अंदाजा नहीं है उस्मान भाई इसका। नहीं, जब वो कह रहे हैं कि अपने इसम को नस्ब देता है, तो इन्ना का इसम तो है ना अर्रजुलानी,
का ईमानी, दो बेशक दो आदमी खड़े हैं। और अगर इन्ना को दाखिल करेंगे तो इन्ना अपने इसम को नस्ब देता है, तो इन रजुलैनी होगा ना, इन रजुलैनी। और अपनी खबर को रफा देता है, और रफा के हालत रफी में वो ठीक रहेगा, अलिफ और नून के साथ ही आएगा तस्निया। तो का ईमानी, इन रजुलैनी का ईमानी। और ऐसे ही अगर हम जमा की बात कर लें, इसकी क्या मिसाल देंगे, अल मुस्लिमूना सादिकूना, यानी सब मुसलमान सच्चे हैं। तो अल मुस्लिमूना सादिकूना, अगर हम कहेंगे बेशक सब मुसलमान सच्चे हैं, तो इन अल मुस्लिमीना हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी हालत नस्बी वजह मुस्लिमूना से मुस्लिमीना हो जाएगी। तो इन अल मुस्लिमीना सादिकूना, क्या कहते हैं? वैसे मेरे कुरान को में इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल कानितीना, इन्नल से शुरू हो रहा है, उसमें भी इन्नल इन्नल, आगे इन्ना मुस्लिमीना। के बाद मुस्लिमीना आ रहा है ना जी, हाँ जी, इन्नल हाँ, मुस्लिमीना, इन्नल क्योंकि इन्ना मुस्लिमीना वल, है। ये मुज़क्कर के लिए आगे, वल मुस्लिमाति मुअन्नस के लिए। जी जी ठीक है। वल मुस्लिमाती, अपने इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती, तो ये अपने इसम को नस्ब देता है। तो वल मुस्लिमाती को भी इसने नस्ब तो दिया ना। ये जो जी, मुअन्नस सालिम है, जमा मुअन्नस सालिम, इसका आराब क्या होता है? हालत नस्बी व जर्री में कसरा के साथ होता है। देखना पड़ेगा, ये जमा मुन्नस सालिम का कसरा के साथ होता है, रफा में जमा, बाकी दोनों में हालत कसरा। नसबी, मुसलमान का हालत नसबी और जरी दोनों ता के नीचे जेर के साथ होगा। जेर के साथ, हाँ जी। तो इसने अपने जो इसम है उसको नसब दिया, यानी इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। तो यहाँ पे यानी ये मुस्लिमाती हालत नसब में है। तो ऐसे आगे आयत क्या है उस्तामा भाई? इन्नल आगे मुस्लिमीन वही है ना सारी, वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीना वस्साबिराति, ये इस तरह की आगे, वल खाशिईना, पूरी इसी तरह यानी ये इन्ना, यानी पूरी आयत में जितने भी सिफात। इसम हाँ, आए हैं उसपे ये आखिर में जो खबर है उसके ऊपर क्या है, वो हर्फ देखें, वो क्या है आखिर में जो खबर आती है। आगे आखिर में आता है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन वो अजरन, अज़ीमा। जी। तो ये सारा मग़फ़िरतन, आखिर में जो आयत आपने आखिरी पढ़ी ना, तो इसको जब लिंक करेंगे तो अजरन अजीमा, वो मुजाफ मुजाफिले होता हुआ उसके साथ पूरा ये इसके साथ जुड़ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उस्तामा भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम तो रहमतुल्लाह। हाँ, ये जो वालेकुम। उस्मान ने सवाल किया ना, इन्ना को अगर राजुलान ने का ईमान है, तो भाई ये जो होता है ना इसम, इसका हमेशा जो जाहिर जब इसम आएगा, मिसाल जैदुन आ गया, राजुलन आ गया, कोई भी इसम इसमें जाहिर जब होगा ना, तो वो हमेशा ही, हमेशा तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुल अक्सर तौर पर वो जो होता है वो वाहिद आता है। लेकिन इनके ऊपर जो जमायर के ऊपर ये दाखिल हो जाए ना, जैसे इन्नहुम यकीदून कैदुन व अकीदु कैदा, यहाँ पर जमीरें हैं, जमीरों के ऊपर जब ये दाखिल होगा तो वहां पर वाह तस्नीया जमा की जमीरें इसे इन्नहुमा, ठीक है, इन्नहुमा यबकियान। तो ऐसे जो है ना जमीरों के ऊपर जब दाखिल होगा, वहां जमीरों के ऊपर तस्नीया जमीर के ऊपर भी दाखिल हो जाएगा, वाहिद पर भी जो है हो जाएगा, जमा पर भी दाखिल हो जाएगा। लेकिन जब इसमें जाहिर पर दाखिल होगा ना, तो वो सिर्फ वाहिद के ऊपर वो वाहिद के ऊपर दाखिल होगा, इल्ला कलील है कि कहीं तस्नीया या जमा के ऊपर दाखिल हो जाए। ठीक है। बाकी जो है मोहसिन साहब ने जो सवाल किया है, इन अल्लाह व मलाइकतहु, मलाइकातहु, ये मुजाफ है और हु ज़मीर मुजाफ है, मुजाफ मुजाफ अलैह के साथ मिलकर ये हो गए मातूफ अलैह, जो है ना इसका लफ्ज़ अल्लाह का, लफ्ज़ अल्लाह अपने मातूफ और मातूफ अलैह के साथ मिलकर जो है ना इन्ना का जो है ना इसम, और युसल्लून अला नबी, ये फेल फाइल होकर जुमला फेलिया खबरिया होकर इन्ना की खबर हो गया। जी, आप पूछें क्या सवाल। और शायद ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफी है, अगली किताबों में हम आगे बारीकी में जाएंगे। वो जो समझ आती है हाँ, कोई साथियों को वो भी निकल जाती है जो आई होती है। अब मैं यही कहता हूँ ना, देखें ना, अब ये सवाल है, ये सवाल होते हैं बड़ी किताबों के, फिर वो बातचीत दूसरे साथी अब परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं हमें समझ आ, हम किताब समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और
بجائے اس کے کہ ہم کتاب سمجھیں ہمیں دوسری چیزوں میں الجھ جاتے ہیں. نفس کتاب سمجھیں آپ. جو بات نہ آئے سمجھ میں، کہیں آپ کی ذہن میں خلجان ہو، پرسنل پوچھ لینا، کلاس چلنے دیا کریں. کیونکہ سب اس میں متوسط بھی ہوتے ہیں، بڑے وہ بھی ہوتے ہیں، اور جی کمزور بچے بھی ہوتے ہیں. اچھا استاد جی، اچھا، میں ایک آپ حضرات کا مثال میں نے پیش کروں